नेता पुलिस की लाठी और ताकत अपने हाथ से नहीं जाने देना बिल्कुल चाहता नहीं। किसी नो भी कीमत पर। नो चीफ मिनिस्टर वांट्स कि पुलिस पावर उनके हाथ से निकल जाए, और कोई ब्यूरोक्रेट भी नहीं चाहता है। लेयर्स ऑफ जो कमांड होते हैं जी। उसमें कंट्रोल करता है नौकरशाही, और नौकरशाही के थ्रू ही मंत्री कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अगर प्रोफेशनल से होता है तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी असहज हो जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ये भी नहीं हुआ है कि आपको बेहतर इक्विपमेंट मिल पाए हो। स्टेट पैसा नहीं खर्चा करना चाहती है पुलिस में। सिंपल। भाई आपको सब्सिडीज से, वेलफेयर से, और वो विभाग का जो बजट है, उसी से पैसा आता है बस। बस और तो कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग। लेकिन हम ये बात ज़रूर देखेंगे कि हमारे तरफ से अनप्रोफेशनल एक्ट्स नहीं हैं। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हम अपने को ऑर्गेनाइज रख के, हमें कैपेसिटी होना चाहिए बेयर द इनिशियल असॉल्ट। वो आई कैन डू व्हेन वी आर टुगेदर। अगर हमारे पास ऑर्गेनाइज पॉलीप्रोपिलीन के अच्छे शील्ड्स हैं, अच्छे नी हगर्स हैं, अच्छे ये हैं, जैसे आपने देखा ना वाइजर्स हैं, जैसे जर्मनी और वहाँ पे हैं, तो एक आदमी 10 आदमी के। लेकिन यहाँ पे दिल्ली पुलिस से मेरे बड़ा दुख लगा, ऑर्डनरी वर्दी में और डंडे लेके घूम रहे थे। तो आप तो पिटोगे ही इससे। हाउ वाज इट टू डील विद द आईएसआई? मेरा ये कहना है कि स्टॉप क्राइंग ओवर कश्मीर एवरी सेकेंड डे। नंबर 2, stop abusing Kashmir issue and Pakistan every day. Take it as a normal course of life. In the meantime, strengthen your comprehensive border scheme which you are doing, sensor, ye wo, electronic, all kinds of things, and keep it on the back burner, because no matter what Pakistan does, it cannot disturb your polity, it cannot disturb anything. Absolute. मेरा प्रिंसिपल ये है, 2 पॉइंट है हमारा, कि एक तो टेक्निकल फॉल्ट है, यूज़ मत करो। किसी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली में ये संवैधानिक नहीं है कि आप छर्रे छोड़ दो और किसी को कहीं से लग जाए। और दूसरी बात क्या है, बहुत बड़ी बात आपने हाँ, कि किसी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में, वर्ल्ड वाइड क्या होता है वही मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ वर्ल्ड वाइड जितने डेवलप्ड डेमोक्रेसी हैं, अमेरिका में या इंग्लैंड में या यूरोप में, यूएन ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इट्स इनह्यूमन, इट कैनॉट बी यूज्ड, सो इट्स नॉट यूज्ड। कहाँ यूज़ होता है? यमन, सूडान, बहरीन, अभी शायद ईरान में। सो द होल इशू इज विद क्लैरिटी इन फ्रंट ऑफ यू। Hello and welcome to Answers with Abhigyan. I have a very, very special guest today. He knows the policing of India. He knows the intelligence of India. He knows the national security of India and is easily one of the most respected officers of his time. I'm talking about Yashovardhan Azad. And the best thing is that I have this book in my hand. This book is something people would expect of Yashovardhan Azad because he has written a book titled Policing the Republic. No one better can talk about policing, internal security, intelligence, relations to our neighbors like Pakistan. So you must read this book, and we are going to get chatting with Yashovardhan Azad himself. I seriously recommend Understand Policing in India. Read this book. Sir, thank you so much. I've been waiting to meet you and ask you this question. Has India moved on in policing from the Thanedar concept? Well, that's a very, very difficult question to answer. The 1861 Police Act still runs. Still runs? Yeah. Yeah. The new criminal laws have changed 10 to 15% of the laws. And the police reform which we are talking about has still not been done. And when we talk about the change in criminal laws, we had argued that there should be first institutional reform
in the criminal law justice System. the four pillars, which are police, prisons, prosecution, and judiciary. But you know, framing laws is easier than reforming institutions. So, to answer your question, have we moved ahead of Thanedar policing? Not really, because that is the pillar. A Thanedar is the pillar of Thana. But And the most powerful. and the most Still powerful. till date, most powerful. Locally, Yes, most powerful. absolutely. And but the embellishments around it, the accoutrement, the gear, a lot which should have been done has not been done. For that, there are reasons, and we can always talk. You come from Bihar, I come from Uttar Pradesh. A lot of similarities between the two states. So there's a very popular story about UP. The story I'll tell you in Hindi, that once a pickpocket was brought to the court, a local court, and the judge told him that, you know, don't do this again. जज ने थोड़ी डांट वाट लगाई और उसको बोला कि ये दोबारा मत करना है, और उसने जज साहब को प्रॉमिस किया कि अच्छा जीवन जीऊंगा, ये काम नहीं करना. तो जज साहब ने उसको छोड़ दिया. तो उसने खुशी के मारे जज साहब से कहा कि जज साहब, ईश्वर करे कि आप थानेदार हो जाओ. Now this is a typical story of UP and Bihar. I mean, perceptually. I know बिहार में पहले भी कहते थे कि जी. किस तरह का अफसर बनने वाला है, क्या थानेदार के ऐसा होगा या नहीं होगा. Because the concept was that a थानेदार is the most powerful. I agree. So after so many years of service, that's the reason I asked you this first question. Then we'll come out to, onto major issues. Does the people still like the police or fear the police? Is there fear, or it has changed or translated No, into I liking? mean, You've in been that- in the state, you've been at the center, you've been at the top of intelligence positions. That's why I'm asking you. No, police has certainly changed. I mean, Okay. we can't say that it is still stuck in that rot. There's no doubt. Police has moved ahead. People have also moved ahead, and that's why the expectations are more. Okay. In a democracy, Yeah, I mean, naturally. people expect hell of a lot. So therefore, what was standard earlier is now below par. So people expect 911, 100 should react immediately. The patrol should be there. They should, in fact, react before we call them. I mean, that's the kind of expectation we have. So in that respect, I think the police is still catching up. Certainly catching up. Now, some of the aberrations are there, like in the society, that, you know, certain individuals in the police, they are insensitive. There are unprofessional acts. Corruption. Massive corruption. Corruption is there. So these things, you know, it's what you call an ongoing process. If you have a good leader in the police, a lot of things change immediately in a district. Yeah. If you have bad, because this is a force oriented, you command men, and you know, you feel very proud commanding the men. And in that respect, I think. So one quick question, and I know detailing is not needed on this one because I thought it was a historic judgment. I worked a lot on the police reforms issue. Has the reform really happened? Your view, your opinion? Well, Supreme Court is tired now doing the implementation of the reform, and they have realized themselves that the states are not really very keen. I'm sad to say this, and very bluntly I'm So saying. politician, नेता पुलिस की लाठी और ताकत अपने हाथ से नहीं जाने देना बिल्कुल चाहता, नहीं. किसी नो भी कीमत पे. नो चीफ मिनिस्टर वांट्स कि पुलिस पावर उनके हाथ से निकल जाए, और कोई ब्यूरोक्रेट भी नहीं चाहता है. मैं ये बात कह दूं, बहुत कम लोगों को पता है. कोई सबसे ब्यूरोक्रेट भी नहीं चाहता. नहीं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट Yes, पॉइंट फॉर मी. yes. अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहता तो मैं समझता हूँ कोई ब्यूरोक्रेट भी नहीं चाहता कि पुलिस की लाठी बिल्कुल उसके नहीं हाथ से चाहता जाता. है, बिकॉज लेयर्स ऑफ जो कमांड होते हैं जी. उसमें कंट्रोल करता है नौकरशाही, और नौकरशाही के थ्रू ही मंत्री कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अगर प्रोफेशनल से होता है तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी असहज हो जाती हैं, ये कहूँ मैं. तो इसलिए देखिए, पुलिस रिफॉर्म ने क्या कहा, सबसे बड़ी चीज़ कि डीजीपी का जो चयन है, जो मुखिया होता है पुलिस का, उसका चयन जो है एक ऐसे पारदर्शी तरीके तरीके से से हो, होना चाहिए. है ना? या.
तो उसमें कोई भी चीफ मिनिस्टर छोड़ते नहीं, वो एडहॉक बना देते हैं। डीजीपी बना देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि एक पर्सनल टाइप जो ट्रांसफ़र्स होते हैं उसके लिए ऑर्गेनाइज सिस्टम हो, एक कमेटी बने आईजी लेवल पे जो कि सिफारिश करे। तो वो सिफारिश भी जो होती है तो ऊपर से चेंजेस के बाद हो जाती है और उसी तरह से सिफारिश की लिस्ट जाती है। तीसरा उन्होंने कहा कि टेन्योर, फिक्स टेन्योर होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट Most डिबेट में, मोस्ट इम्पोर्टेंट फिक्स तो टेन्योर। उसका कोई फॉलो नहीं, और आपने देखा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 1 सेकंड में हटा दिया एक सेकंड में हटा इसमें, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उसका। तो इसलिए, और अगर आप, हाँ एक और भी था, सबसे बड़ी बात पारदर्शिता के साथ देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी। You know, we want the police to be accountable. The police leaders want police to be accountable. तो पुलिस के बारे में उन्होंने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ग्रीवेंस ये होना चाहिए जो कि पुलिस कंप्लेंट्स को सुने। वो कहीं नहीं कुछ हुआ है, अगर हुआ भी है तो इसी तरह बन गया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मॉडल एक्ट सोली सोराबजी ऐसे व्यक्ति ने बनाया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन सही बात। इन लॉ, उसको भी सेंटर ने अपने ही जगह पे फॉलो नहीं करवाया, और हर स्टेट ने दे मेड देयर ओन लॉज, एंड द वर्स्ट लॉ ऑफ दिस काइंड इज मेड इन बिहार। एक चीज़ और देखिए, बिहार में पुलिस कमिश्नर एक भी नहीं है, एंड यू नो द ऑपोजिशन ऑफ पुलिस कमिश्नर सिस्टम कम्स फ्रॉम द IAS। दे डोंट वांट टू गिव दोज पावर्स की बात है। आर्म्स लाइसेंसिंग कैसे दे दें, सिनेमा लाइसेंस कैसे दे दें, पेट्रोलियम लाइसेंस कैसे दे दें। अगर भारतवर्ष की सही तस्वीर देखनी है तो यही है कि नौकरशाही बराबर मंत्री को ये कहता है कि जितने लेयर्स रहें लाइसेंसिंग के, परमिशन के, अपने पास रखो ताकि पैसा और आए, पावर ताकत आए, आपके पास है। आपके पास है। दिस इज द प्रॉब्लम। सो यू विल नॉट गिव द ड्यू टू द और ये भी बहुत प्रोफेशनल्स। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि नौकरशाही कब अफसरशाही बन गई इस देश में मेरी समझ में नहीं आया। बिल्कुल, क्योंकि आज वो अफसरशाही है, आज नौकरशाही नहीं है, बहुत अच्छी बात कही आपने, नौकरशाही से अफसर। अफसरशाही बन गई। आई विल यूज इट नाउ। जरूर जरूर आप Very करिए। true. ये मेरा बहुत पुराना सोचना है कि Absolutely. कहा और हम लोगों को बताया ये गया था मेरे अर्ली डेज ऑफ जर्नलिज्म में, कि साहब ये नौकरशाही, देखते देखते बाद में पता चला नौकरशाही गई भाड़ में, ये तो अफसरशाही है, अफसरशाही। ये तो हुक्म चलाते हैं, ये तो हुक्मरान है। You've recently gone to the apex score of India, the highest score of India, on pellet guns. Firstly, what is your belief that pellet guns should never be used? I will also later come into this Jammu Kashmir example. Why do you think so? It should not be used at all. And was it used at Jantar Mantar? Government denies it. Two parts. Abhigyan, I'm very, very happy that you asked this question, because I think this is the most important debate in the country today. Right now, yes. You know, when we talk about democratic policing, when we talk about constitutional policing, police has to be under the norms, right? Yes, yes. And let me tell you how I thought of it, because you asked me. I was deeply disturbed and distressed, like you, on the firing on Yeah, July absolutely. 20th, Absolutely. बच्चों पर and the kind of violence which took place both sides. हाँ, Policemen dragged, beaten up, one head constable died. This was not necessary. If the government would have intervened earlier, this wouldn't have happened. ये हालात So the fault is there. और हर विरोध में जैसा होता है कि स्थिति जो उस समय निर्मित हुई या जो इशू है उसको लोग भूल जाते हैं और पुलिस बर्बरता पे बात आ जाती है, तो सूट करता है ऑपोजिशन को भी और रूलिंग पार्टी को भी कि नीट रिफॉर्म तो गया, और वैसे भी नीट रिफॉर्म के लिए जो कार्रवाई कयावत की गई है, मैं नहीं समझता दैट इज सफिशिएंट। एक दूसरी कमेटी बन गई है, इज देयर एनीथिंग मोर? नो। एनीवे, अब पैलेट गन की बात जो है, मेरा कहना यह है, आई बिलीव फर्मली दैट द यूज ऑफ पैलेट गन्स इन डेमोक्रेसी इज नॉट परमिसिबल। व्हाई? okay, good. Because there is a Good, yeah. technical fault with the system. This is a quote here, the use of pellet gun in democracy is not permissible. Yes. Okay, fair enough. The Go reason ahead, is that the policeman has control over the trigger, but not the outcome. Is another quote. sir. Okay. Why? Because when we Two very important quotes. because when we are firing in a democracy, it should be pinpointed. We should know where it's going. We should know it's against a violent person,
and even for not killing him, for hitting him at the leg or something, because he's violent. When you fire a pellet gun, you are not able to control the direction. If you fire that pump action gun, it goes in a conical cloudburst of metallic shrapnels. So if I'm hitting there, Okay. it can hit the other man in the eye. It can hit the third man, anything. You remember in British times, they used to kill partridges. कि भाई कोई एक छर्रा तो कहीं लग ही जाएगा, तो गिर जाएगा उससे. गिर जाएगा, हाँ. So do you want it to practice on humans? No. So even हमने 1982 में डबर पैलेट्स चलाए जब हम घिर गए थे. मोलोटोव कॉकटेल, पेट्रोल, पीरगेट कांड बड़ा पॉपुलर था, भोपाल में हुआ था, और भयानक लॉ एंड ऑर्डर था. लेकिन हमने जो चलाए वो दीवार पे पास में चलाए, पिन पॉइंटेड डायरेक्शन में इस तरह चलाए कि क्षति नहीं पहुंची. लेकिन अगर हम पैलेट गन चलाएंगे 300 और उसके अंदर के से, तो कहीं से कहीं लग सकता है. अब दूसरे पॉइंट पे आएंगे. आपने कहा कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ या नहीं. हाँ, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ डिबेट है. ऑपोजिशन point of debate, that's not a debate. सरकार की तरफ से हाँ, कोई कंफर्मेशन हाँ. नहीं है इस बात का. तो पहले कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन बाद में जब पैलेट गन इंजरीज के ये आ गए आपके एविडेंस में, सफदरजंग के इसमें, और तो ये कंफर्म हो गया कि पैलेट गन यूज़ किया गया है. उसके इस्तेमाल के बाद जो डिप्टी कमांडेंट है RAF का, उसने ही नोटेड इट डाउन द जनरल डायरी ऑफ द पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन, एंड ही सेड दैट द DCP इज रिस्पॉन्सिबल. उसके बाद DCP ने शायद कहा कि मैं उस एरिया में नहीं हूँ. दैट्स अ पॉइंट ऑफ सेपरेट डिबेट, बट इट वाज यूज्ड. अब यूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2010 और 16 जो कश्मीर में हुआ था, उसके बाद मेनलैंड में नहीं यूज़ किया नहीं गया. यूज हुआ है. मैं आने वाला था इसी पॉइंट पे. गुड, आपने इसको तो discuss ये किया. फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है. लोग कह रहे हैं सिंगूर बॉर्डर पे हुआ, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं मान रही है. और मणिपुर में शायद हुआ होगा, बट बॉम्बे में, दिल्ली में, कानपुर में कहीं भी तो यूज़ नहीं हुआ है पैलेट गन. तो ये एक विषय अलग है जो जुडिशल इंक्वायरी का है, जो कोर्ट शायद करेगी. वायलेंस का, यूज़ ऑफ पैलेट गन, और किस परिस्थितियों में हुआ. मेरा प्रिंसिपल ये है, 2 पॉइंट है हमारा, कि एक तो टेक्निकल फॉल्ट है, यूज़ मत करो. किसी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली में ये संवैधानिक नहीं है कि आप छर्रे छोड़ दो और किसी को कहीं से लग जाए. और दूसरी बात क्या है, बहुत बड़ी बात आपने हाँ, कि किसी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, वही मैं बता रहा हूँ, हाँ, हाँ. वर्ल्ड वाइड जितने डेवलप्ड डेमोक्रेसी हैं, अमेरिका में या इंग्लैंड में या यूरोप में, UN ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इट्स इनह्यूमन, इट कैनॉट बी यूज्ड, सो इट्स नॉट यूज्ड. कहाँ यूज़ होता है? यमन, सूडान, बहरीन, अभी शायद ईरान में. सो द होल इशू इज विद क्लैरिटी इन फ्रंट ऑफ यू. हाउ डू यू चूज? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, कौन सा ऐसा SOP है जो जिसके खिलाफ आप हैं. हम कोर्ट से विनती कर रहे हैं कि भाई कोई भी SOP रहे या नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं इन प्रिंसिपल हम उसके खिलाफ हैं. तो एनीवे, हमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स सब सारे मिल गए हैं. लेकिन अगर आप 2022 दिल्ली पुलिस का भी अगर आप देखें SOP, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ पैलेट गन्स एट ऑल. सो द क्वेश्चन इज, एक एक्सपर्ट कमिटी बैठी. Yashovardhan Azad ji, are you saying that if it were used in the Jantar Mantar incident, it's illegal? It has not been banned, so I can't say it is illegal. Okay, fair enough. But under what circumstances it was used, it will be There has to be inquired a into. clarity on that. There has to be an inquiry into that. Why I'm saying कि ban it today, yesterday, whatever. और अब आपने जो पूछी बात वो जम्मू एंड कश्मीर की, उस पे आ जाऊँ मैं. 2010 और 2016 में इसका इस्तेमाल किया गया छर्रों का. पैलेट गन उस समय स्थिति नाजुक थी. गलियों के गली कूचे से कहीं से भी वो बच्चे स्टोन थ्रोइंग कर रहे थे, भयानक कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं. चोटें लग रही थी, उसमें से कुछ बहुत सीरियस इंजरीज भी हुई थी. तो उस समय पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया क्योंकि टीयर गैस में वो वेदर कंडीशंस में स्मोक उड़ जाता था. नज़दीक जाना लाठी चार्ज के लिए डेंजरस था क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से स्टोन थ्रोइंग हो रहा था, इसलिए ये इस्तेमाल किया गया. लेकिन इसके इस्तेमाल के बावजूद करीब 2000 से ज़्यादा चोटें पहुँची थी.
और आपको मालूम है मेरे बड़े भाई साहब तो एम्स के आई के चीफ थे। सही बात है। उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि एम्स के डॉक्टर्स गए थे वहाँ उनको देखने के लिए, कि चोटें जो आँख में लगी थी वो काफ़ी मतलब गहरी थी। बहुत गहरी थी और बड़ा उसका प्रभाव पड़ा, बोथ साइकोलॉजिकल एंड ऑफ कोर्स फिजिकल। सो दैट इज़ again an empirical evidence that what it can cause in terms of a trauma. So, is your plea to the highest court of this country that whatever may happen, Yes. protests will happen naturally, Yes. this is democracy, कुछ भी हो, pellet gun का इस्तेमाल नहीं होना। नहीं होना चाहिए. And why? Because the experts have looked into an array of other non-lethal weapons which should be used. Which can be used. Because they are pointed and you know exactly where you're hitting. Not ये कि आपने छर्रा मार दिया, पता नहीं किसको कहाँ लग जाएगा. एक लास्ट पॉइंट सर, आप मैंने कहा ना आप हर पोजीशन पे रहे हैं, हाईएस्ट पोजीशन अपने करियर में. What is the responsibility of the police officer? You faced it all, seen it all, like I have as a reporter. What's the responsibility of the police officer when a Jantar Mantar protest is happening? Because there are both sides to it. Police has also been hit, which is not a very good thing in my opinion. Police has been accused of hitting the police brutality issue of youngsters, which again is completely wrong. Officer's responsibility then, more than the orders he's taking. You know, you've asked a question which is deeply troubling for many senior officers and I'm also, asking, yeah, because you led a force, also- you've led also so many people men on at the large. ground. See, Abhigyan, as far as I'm concerned, no matter what the provocation is, and I'll tell you from my days, when we were battling law and order, we had hardly any equipment. एक डंडा होता था, वो कहीं मारो किसी के पीठ पे तो डंडा टूट जाता था, उसकी पीठ तो सही सलामत रहती थी. अब बुंदेलखंड के लोग बड़े बहादुर होते हैं. हम भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट था हमारा जब हम लाठी चार्ज होता था. तो वो हमारे पास वो कहते हैं बैम्बू शील्ड होते थे. एक पत्थर मारो तो डेंट लग जाता था उसमें, और एक कंटोपा होता था हेलमेट के नाम पे. देयर वाज नथिंग. और उसके बाद भी हम उसी तरह ये करते. 3-वे फायरिंग ये रहती थी, टीयर गैस स्मोक, वो हम फेंकते थे. नज़दीक आ गए तो 3-वे पिन वाला फेंकते थे. दिस वाज द कंडीशन. अगर मैं ग्राउंड पे रहूँगा, सबसे पहले तो एक प्रोटोकॉल है कि भाई नेगोशिएशन हो, हम अनाउंस करें, वो सब आपको मालूम ही है, मैं क्या बताऊँ. कि उसके बाद हम वाटर कैनन यूज़ करते हैं, डिस्टेंस वाली जितनी चीज़ें हैं बाद में. लेकिन हम ये बात ज़रूर देखेंगे कि हमारे तरफ से अनप्रोफेशनल एक्ट्स नहीं हो. ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है पुलिस की. हम अपने को ऑर्गेनाइज रख के, हमें कैपेसिटी होना चाहिए टू बेयर द इनिशियल असॉल्ट. वो आई कैन डू व्हेन वी आर टुगेदर. अगर हमारे पास ऑर्गेनाइज पॉलीप्रोपिलीन के अच्छे शील्ड्स हैं, अच्छे नी हगर्स हैं, अच्छे ये हैं, जैसे आपने देखा ना वाइजर्स हैं, जैसे जर्मनी और वहाँ पे हैं, तो एक आदमी 10 आदमी के बराबर होता है. लेकिन यहाँ पे दिल्ली पुलिस से मेरे बड़ा दुख लगा कि ऑर्डिनरी वर्दी में और डंडे लेके घूम रहे थे. तो आप तो पिटोगे ही वैसे में. दूसरी बात जो मैं देखूंगा, ये सब चीज़ तो मॉडर्नाइजेशन में ये भी नहीं हुआ है कि आपको बेहतर इक्विपमेंट मिल पाया हो. स्टेट पैसा नहीं खर्चा करना चाहती है पुलिस में. सिंपल. भाई आपको सब्सिडीज से, वेलफेयर से, और वो विभाग का जो बजट है, उसी से पैसा आता है बस. बस, और तो कुछ है नहीं. देयर इज़ नथिंग. और पुलिस को नहीं देना चाह. और क्या चाहते हैं कि हर बार सीआरपीएफ आ जाए, बीएसएफ आ जाए सहायता के लिए, और इसीलिए जद्दोजहद होती रहती है सेंटर और इसमें. तो No, you still not answered. मतलब that's what I'm saying. जी, I'm just going to policeman it. on the ground. The policeman on the ground. His sensibility, his responsibility. That's what I'm saying. So then I will not use the uniforms without name badges. No, why? Because I'm under law protected to do crowd control. Why should I hide कहते हैं without a name badge? Number 2, I don't want plainclothes policemen with danda. For what? Are they gunda fauj? I will never use them. Number 3, I will never touch a little girl or a Very bystander. important point. Plain clothes policemen with danda. A No. lot of those videos emerged from the Jantar Mantar. Yes.
And I will not allow these things. If there is a truck with stones, I'll throw it out. Because that's not the way to do it. Most important, Abhigyan, if I was there on ground, I will see that nobody is armed. That's safe. और मान लीजिए उससे क्रिमिनल भी हैं, तो क्रिमिनल क्या बैरिकेड पे ज़्यादा ऊपर कूद जाएगा क्या? क्राउड कंट्रोल टैक्टिक्स तो हमारी वही रहेगी, चाहे कोई मर्डरर हो, चाहे कोई हो. इट डज मेक अ डिफरेंस. वो काम स्टेट का है, पुलिस का है कि उनको निकाले या जो भी करे. हाँ, जिसने अटैक किया है हमको, पुलिस को, उसको हम नहीं छोड़ेंगे. उसको हम पकड़ेंगे और उसको डालेंगे उसको इसमें, उस पर कोई शक नहीं. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ आई एम, एंड देन आई विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई विल राइट. Why did this happen? It's a very important one. I don't want to miss it. ये सादे कपड़ों में पुलिस वाले क्यों थे जंतर मंतर में आपके हिसाब से, और क्या होने चाहिए थे? आपने कहा नहीं होने चाहिए थे. ये एक पुराने ठस्सू टाइप के जो पुलिस अधिकारी सोचते हैं ये भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, थोड़ा सा नेम टैग भी निकाल दो. आजकल के ज़माने में नहीं चलता. ये बच्चे जो हैं स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, ये समझ जाते हैं कि आप किस तरह के हैं. बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मॉडर्नाइजेशन का क्या हुआ. एकदम सही प्रश्न पूछा, बिकॉज यू बीन अ रिपोर्टर फॉर डोंकी नंबर ऑफ ईयर्स. आई एम सेइंग यू शुड हैव अ हेलमेट विद कैमरा, विच विल इमीडिएटली कैच कि दूसरे आदमी ने आपके खिलाफ वायलेंस किया या आपने कहते हैं किसी निर्दोष की पिटाई की. अब कोई लड़की बेचारी जा रही है स्टैंड में, यू कांट हिट हर विद अ डंडा, नो मैटर व्हाट हैपेंस. होता क्या है, कभी कभी कांस्टेबल्स को किसी ने अटैक कर लिया, खींच के मार दिया, तो वो तो देखता है क्राउड तो भाग गया, वो अपनी खुंदक निकाल लेता है बगल में जो भी बेचारा खड़ा है. बट दैट्स व्हाट यू हैव टू कंट्रोल, दैट इज़ व्हाट योर जॉब इज़. और हमारे समय में हम भी कहते हैं पूरे पत्थर खाते थे. मुझे याद है पहले दिन जब मैं अभिज्ञान गया जबलपुर में ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करने एज असिस्टेंट सुपरडेंट ऑफ पुलिस, मैंने सोचा कि दफ्तर में आराम से ऑफिस में जाके बैठूंगा. और मेरे सुरजीत सिंह सरदार जी ने कहा तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, ये लो डंडा, ये लो शील्ड और ये लो हेलमेट, चलना है मालवीय चौक पे. और मालवीय चौक पे मैसिव लाठी चार्ज हो रहा था. तो माई फर्स्ट डे वॉज आई सॉ दिस एंड वी केम बैक ब्लीडिंग, हाथ से, यहाँ से, वहाँ से. एंड ही सेज योर हाफ योर ट्रेनिंग इज़ ओवर टुडे, द अदर हाफ अबाउट रीडिंग राइटिंग विल डू. तो ये तो पहली So चीज़. very important. I mean, for me, it's a very important statement that Yashovardhan Azad has made. No use of pellet guns in democracy. There is no space for it. It's gone to the highest court, that is the Supreme Court of India, over it. And बहुत बड़ी बात है इसको जानना और समझना, क्योंकि ये व्यापक बहस है, पूरे देश में हो रही है. विपक्ष भी इसको उठा रहा है, लेकिन पूरे देश में क्या आप नौजवानों पर या किसी भी हालात पर वे पैलेट गन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत व्यापक बहस है. नेक्स्ट पार्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी about Yashovardhan Azad, of course. The historic tour of India to Pakistan, 2003, 2004. The government of India was very worried, naturally, security reasons, and the entire government of India trusted to do the security surveillance arrangement was Yashovardhan Azad, because of which the 2003 and 2004 cricket tour to Pakistan happened. So I told you, he's also one of the top intelligence officials India's ever seen. We'll talk about that in a short while. Okay, let's come to cricket. What was that all about, your experience? I know how much you have dealt with notorious Pakistani intelligence, the ISI. So what can you tell us, and what all is there in the book? How much have you written about this in the book? In fact, the last chapter, good you asked me, the last chapter is about the Please. Pakistan. Yeah. The heading is the tour to Pakistan, cricket, diplomacy, security and politics. And And that's true. You were dealing with all of it. I remember very clearly. So you were dealing with all of it. And of course, the most notorious, nefarious, whatever you call it, the ISI. I think, you know, उस समय जो वातावरण था, एक बड़ा ही असुरक्षित वातावरण हम कह सकते हैं, क्योंकि 99 में वाजपेयी जी वहाँ गए. वाजपेयी जी वॉज अ ग्रेट मैन, डिस्पाइट द कांधार हाईजैकिंग हुआ, उसके बाद फिर करगिल उसी समय हुआ,
और उसके बाद आगरा टॉक्स फेल किए, All of that I was there. I पार्लियामेंट remember पे it अटैक so. किए, सब कुछ हुआ। तो 99 में उस समय एक पाकिस्तान की टीम आई थी यहाँ, हाँ हाँ और उसमें वो हिंदुस्तानी सेना या किसने पिच उखाड़ दिया था। हाँ, तो मुझे बनाया गया फिरोजा कोटला की पिच। हाँ, मुझे याद है, तो मैं मुझे रिपोर्ट करने बनाया गया गया था सुबह उनका 4 बजे। हाँ नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। हाँ तो मैं उस टीम के साथ पूरा घूमा 3 महीने। हाँ तो सारे मेरे दोस्त बन गए, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम वगैरह। हाँ तो मुझे अच्छा आइडिया मिल गया पाकिस्तान में क्या होता है, नहीं है उसमें कुछ एक दो पढ़े लिखे भी थे। तो मुदस आई थिंक द ओपनिंग जो था वो दाढ़ी बना लिया है आजकल। 2 openers who were very good. One of them was engineer. अच्छा So he told me a lot of things about Pakistan. तो 2003 में जब वाजपेयी जी थक गए कि सब कुछ ट्राई कर लिया, ये पाकिस्तानी मानते नहीं है, आगरा टॉक्स उन्होंने कहा कि नहीं हम वो मेरे गारंटी तो नहीं आगरा देंगे। टॉक्स में तो आई वाज द ओनली रिपोर्टर इनसाइड Exactly. द मैरियट होटल, और मेरे सामने से मुशर्रफ वॉकड आउट एंड द टॉक्स Yes. कोलैप्स्ड। आई वाज द ओनली Yes. रिपोर्टर। Because Advani ji did not agree कि Advani भाई ji did not agree. आप पहले and बताइए Sushma Swaraj went and told Yes. Musharraf this. Musharraf walked out in front of me. In front of me. Yeah. कि आप गारंटी आगरा talks दीजिए, से गारंटी दीजिए कि हम टेरर नहीं एक्सपोर्ट हाँ करेंगे। सही बात। तो एनीवे, सो देन ही सेड लेट्स ट्राई द लास्ट थिंग, हाँ क्रिकेट डिप्लोमेसी। हाँ और अडवाणी जी कहे यस व्हाई नॉट। अब उन्होंने बुलाया होगा डीआईबी और रॉ चीफ्स वगैरह को, क्या है, सबने कहा भाई सुरक्षा का तो मामला है सीरियस। एंड देन दिस आइडिया इमेनेटेड फ्रॉम समवेयर कि ओके लेट्स सेंड अ टीम, let's send a team to Pakistan and find out whether situation is conducive enough to play matches and for a tour. 15 साल से कोई टूर नहीं हुआ था। तो वो टूर नहीं हुआ था। हाँ और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज तक नहीं हुआ है, ये तो लास्ट टूर है। हाँ लास्ट है, उसके बाद एक और हुआ 2006। 2006। हाँ उसके बाद हुआ तो 2006 सहवाग वाला टूर था। ये सहवाग से पहले नहीं, ये मैं सहवाग वाले में ही था। अच्छा आप सहवाग वाला। हाँ हाँ जब सहवाग ने उसके ट्रिपल बाद धोनी वाला टूर हुआ था शायद। उसका धोनी वाला। हाँ तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसको भेजा जाए, तो पता नहीं मेरा नाम कैसे आया उसमें। हो सकता है मैं पाकिस्तानियों के साथ था या मैं पीआईबी सिक्योरिटी डिवीज़न का भी चीफ था, ये क्लिंटन और ये सारे लोगों की सुरक्षा भी मैं देखता था। तो उसके बाद मुझे चुना गया। तो मेरी टीम में एक तो मोनी माथुर थे जो मीडिया इंचार्ज कम्युनिकेशंस के थे बीसीसीआई के, और दूसरे शेट्टी साहब थे जो सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के। तो हम पूरा पाकिस्तान गए, घूमे। उनके मीटिंग, पहली मीटिंग मुझे याद है इस्लामाबाद में जब हम पहुँचे तो पूरे जनरल लोग सामने में थे, होम सेक्रेटरी भी सामने थे। I was dying to ask you this. How was it to deal with the ISI? I know you're laughing and we'll read your book, but how was to deal? I mean- बड़ा पिक्चराइजेशन हो गया है और फिल्मीकरण हो गया है ISI और पाकिस्तान के जनरल से डील करने का। धुरंधर भी, मैंने भी पाकिस्तान पर बहुत बातें कही हैं बिकॉज आई ट्रैवल्ड सो मच टू पाकिस्तान। तो हाउ वाज इट टू डील विद द ISI, और इतनी नफरत उनको क्यों है हिंदुस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट? एक किस्सा आपको बताता हूँ कि हाँ, बस में जब हम जा रहे थे कराची में, तो हमारे साथ कोई बेजरिया जो बैठा था वो ऐसा ही का ही होगा देखने के लिए। हाँ तो जब हम क्लिफ्टन एवेन्यू से गुजर रहे थे हाँ तो एक बंगले पे नज़र पड़ी। हाँ हमने भी उसी समय देखा और उसने, उसकी नज़र भी उसी तरफ पड़ी उस पे बंगले पे। हाँ। तो मैंने ये उसकी वही मशहूर बंगला था ये क्लिफ्टन वही का? मशहूर बंगला था दाऊद इब्राहिम दाऊद का, मैं कह इब्राहिम सकता हूँ दाऊद इब्राहिम का। दाऊद का दोनों में हमारे नज़रें आमने सामने हुई और उसके बाद हम आगे बढ़ चले। देखिए आईएसआई का क्लियरेंस था तभी तो ये हुआ। मुशर्रफ ने भी जब परमिशन दिया हाँ। तो वो तो खैर वो विनती कर रहे थे हमसे कि मैच होना चाहिए। हाँ। जैसे कि वो ये भी चाहते थे कि कराची में एक टेस्ट मैच हो। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अडवाणी जी ने भी मुझे फ़ोन करके पूछा कि यशोवर्धन जी क्या कराची में हम मैच नहीं कर सकते? हाँ तो मैंने कहा सर देखिए थोड़ी सी समस्या होगी सर, 5 दिन का एक्सपोजर थोड़ा सा डेंजरस रहेगा। तो उन्होंने बड़े अच्छी तरह कहा कि नहीं नहीं आप भी देख लीजिए और हम डीएनए साहब से भी बात करेंगे। हमने अपना पोजीशन मेंटेन किया और अडवाणी जी का बड़प्पन देखिए कि अगर वो चाहते थे तो करवा सकते थे मैच, हाँ, इसमें सही क्या बात था। लेकिन उन्होंने बात मानी हाँ सिक्योरिटी की। तो उस बात की मैं बड़ी तवज्जो देता हूँ कि ऐसे शीर्ष स्तर पर
अगर But you're not answering my question. How was it to जो सब लोग सुनना चाहेंगे, आईएसआई से फेस टू फेस डील करना कैसा था? आपने तो सोचे कितने अफसरों से उस समय डील किया होगा, आपको इंटरैक्ट करना पड़ा होगा, आपके ऊपर कितना भयानक फॉलो अप रहा होगा. आई कैन जस्ट इमेजिन दैट. देखिए उसका उसका तो मैं एक एग्जांपल साहब बता दूं आपको। कराची जब हम पहुंचे तो मैच में मुझे 11:30 पौने 12 बजे रात में एक ख़बर मिली एम्बेसी के थ्रू कि एक सूचना आई है अपने सूचना तंत्र से कि अटैक होने वाला है इसी होटल। अरे बाप रे. और उसी जगह न्यूजीलैंड टीम जब थी 2 साल पहले या 3 साल पहले, तो उनके होटल के सामने वो बस पे अटैक हुआ था और न्यूजीलैंड टीम उसके बाद भाग गई थी वापस घर। अरे बाप रे. तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या हाँ, क्या हालत हालत थी। हुई थी, बाप रे. तारिक जमील एक डीआईजी थे, मैंने फ़ोन किया। ही वाज अ पुलिसमैन, टॉप पुलिसमैन। आई कुड मेक आउट इज नॉट आईएसआई, इज अ फील्ड मैन। हाँ. He came for 4 hours. We did everything, and we cleared all kinds of things. We did जो भी किया जा सकता है। जब हमारी मीटिंग होती थी तो मीटिंग में जो जनरल वहाँ से बोलते थे, तो भाई ऑब्वियसली क्लियरेंस तो हर चीज़ में आईएसआई का लिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। डायरेक्ट तो वो हमसे बात करेंगे नहीं, लेकिन ऑब्वियस था कुछ भी अगर उनको कहवाना है तो वो अपने आदमी के थ्रू कहवाएंगे। सारे वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, कोई होम सेक्रेटरी थे, जनरल्स थे, एयरफोर्स के थे, दे वर ऑल देयर। दे वर एक्चुअली द गाइज हु वर एक्चुअली रूलिंग। पेशावर जैसे हम गए और पेशावर में गवर्नर साहब ने कहा यहाँ तो कोई ख़ास क्राइम नहीं होता है, तो मेरे को तो हंसी आ रही थी नीचे देख के। फिर वहाँ आईजी साहब थे, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे। तो ऑल दिस विच इज़ बीइंग कन्वेड, मुझे वहाँ का जो इंटेलिजेंस शेयर किया गया, बताया गया, दैट वाज ऑल द रिपोर्ट फ्रॉम द आईएसआई। इट वाज क्वाइट क्लियर। और मुझे मालूम था कि उस समय अमेरिका ने कहा है कि चढ़ाई करो वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे, और इसीलिए वो बॉम्बिंग सेशंस चल रहे हैं। तो मैं तो रात में मेरी हवाई उड़ गई, तो मैंने तो इसलिए वो होटल चुना। हाउ स्केर्ड विद द प्लेयर्स? प्लेयर्स का क्या हाल था? मतलब Players पाकिस्तान में were खेलना, okay. श्रीकांत को तो ग्राउंड में घुस के एक बार पेट में मुक्का मारा गया था, वो घटना भी मुझे याद है. प्लेयर्स का क्या हाल था? प्लेयर्स को मैं बता देता हूँ आपको। जब हम गए उसी दिन वो मैड्रिड बॉम्बिंग हुआ, तो हमने बताया नहीं प्लेयर्स को 2 दिन तक। जब वो वापस आए, पहले हम वहाँ थे, हम मैच खेल के जब वापस आए तब हमने बताया मैड्रिड बॉम्बिंग के बारे में। और जब हम एयरपोर्ट पे ही थे, उन्होंने कहा क्या कैद करके रहेंगे हम वहाँ पे? कैद रहेंगे? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बट लेटर ऑन आई मस्ट से दैट दे फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। दे फेल्ट कंफर्टेबल। पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो बहुत अलग है, वो तो आप भी अच्छा जानते, मैं भी जानता नहीं, हूँ. एक चीज़ और बताता हूँ कि प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल कांटेक्ट भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा. दे गेव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू मी एज अ प्रोफेशनल। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी चीज़। जबकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो जनरल साहब ने कहा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर द मैचेस, कोई इशू ही नहीं है, और क्रिकेट इज़ क्रिकेट। तो मैंने कहा नॉट एग्जैक्टली योर एक्सेलेंसी, क्रिकेट समटाइम्स डेवलप्स इनटू बिगर इश्यूज। तो वो माने ही नहीं, बोलते नो नो वी कैन नॉट गिव, क्या कहते हैं, मैक्सिमम सिक्योरिटी एंड ऑल दैट बिकॉज देयर इज़ नो थ्रेट। आई सेड जनरल प्लीज डोंट माइंड व्हेन योर चीफ Musharraf, General Musharraf has been attacked twice. You think these terrorists will spare my players? I'm not going to take a chance. एक बात है, मैंने बहुत साल पहले कही थी पाकिस्तान को लेकर, उस समय बहुत बवाल हुआ था कि ऐसा कहना नहीं चाहिए, पॉलिटिकली इनकरेक्ट है. मैंने कहा क्या ज़रूरत है वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करने की? सीधे फौज से बात करिए, आईएसआई से बात करिए. तो आपको कितना लगता है हैसियत वहाँ पे जमहूरियत की है? कितना लगता है? अभी इमरान का हाल देख लीजिए. मतलब आप तो इतने अच्छे से आप और इमरान खान को जानते हैं, अब देखिए क्या कर रहे हैं उसके साथ. मतलब कुछ भी हो, वो आपका एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, असैसिनेशंस कर देते हैं, आप मार देते हैं लोगों को. तो कितनी रेलेवेंस है डेमोक्रेसी की पाकिस्तान में? नहीं, डेमोक्रेसी तो खैर छोड़ दीजिए, वो नहीं है. जो सामंतवादी हैं, सत्ताधारी हैं, ज़मीन वाले, जायदाद वाले हैं, उनकी चलती है. इट्स अ टोटल फ्यूडल स्टेट. और दूसरी बात यह है कि देखिए जो भी होता, मुशर्रफ के समय ही हमारा सीज़ फायर हुआ था लाइन का, थोड़ी पीस थी.
और आप देखिए आज मुनीर से बातचीत ट्रंप करते हैं, सारे जो अंकारा टर्की जहाँ भी जाते हैं, ईरान जाते हैं, मुनीर ही आगे रहते हैं। तो ये बात सही है, हमें प्रैक्टिकल, आफ्टर ऑल अफ़गानिस्तान में अब हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं उन्हीं ना, जो लोगों कि से बात बहुत कर रहे बड़े हैं। थे। हाँ, जो कि तो वहाँ की इसलिए गवर्नमेंट आज की। वी शुड बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। और मुनीर साहब तो अब राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, सही बात है। और उसी लिए बातचीत चल रही है इमरान के पार्टी से कि भाई आप मान लो कि भाई फुल राष्ट्रपति फुल बनाओ, ड्रेस फिर का हम ये इमरान खान को राष्ट्रपति छोड़ बनाओ देते हैं। और हम उनको छोड़ देंगे, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे, कहोगे पावर्स सब हमारे पास हैं। वो अग्री नहीं कर रहे हैं इस बात पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ चेंज ऑफ ये होना चाहिए टैक। और You know, कोई but my question, with your enormous experience and intelligence experience, uh, one of the last points, and then I'll come quickly to your book now. Uh, who should India ever talk to? Pakistan is very good at propaganda internationally. We all know that. You know it better than any top official of this country. Who do you talk to? There is nobody actually to talk to in Pakistan. yes, because the prime minister is almost defunct. Yeah. Yeah. And Mohsin Naqvi has come up with new findings, the Home Minister, saying that, and by the way, he's the Interior Minister, he's the brother-in-law of somebody of Munir. Yeah. So he's saying that I will expose all the corruption in this country, which is, he wants to become the Prime Minister. And Munir himself wants to become the We President. just saw the situation in Operation Sindoor also. So actually, who do you talk to? So, if you ask me, even if you talk to anyone, we have no negotiable points to negotiate on. Yeah. See, अब POK में आप देखो what is happening, which started off with inflation. ये बात जो हुई है इन्फ्लेशन वगैरह से शुरू हुई है कोविड के बाद से. जी. And now they have realized कि okay, there is no democratic power, there is nothing. They're elected It's assembly. almost like where they fighting have, for your own right on your own 40, land. exactly, exactly. So the only person you can reach out is to Munir, but Munir's position is very, very hardened, and and these back channel talks ultimately lead you nowhere. No result. Yeah, yeah. It's of no result. So Indus Water Treaty पे we remain firm. We have to only see. देखो विज्ञान, मेरा ये कहना है. There are 2-3 things I've written in this book about Kashmir also. मेरा ये कहना है कि stop crying over Kashmir every second day. Number 2, stop abusing Kashmir issue and Pakistan every day. Take it as a normal course of life. They speak against you in UN, you have somebody speaking against them in UN. That goes on, that it doesn't make a difference. Indus Waters Treaty, stay firm. If they say we want to talk, say yes, we want to talk. You talk about dal bhat, you talk about anything. Ultimately, you have to say that yes, you have to stop terrorism across the border. In the meantime, strengthen your comprehensive border scheme which you are doing, sensor, electronic, all kinds of things, and keep it on the back burner, because no matter what Pakistan does, it cannot disturb your polity, it cannot disturb anything. Absolutely. Now, another thing, any government remains, even the opposition, you should stop abusing each other politically, because once or twice, some operation will be done across the border, because after all, the ISI gets a lot of budget, they have to justify their existence. तो कुछ ना कुछ पहलगाम, बैसरन तरफ होता रहेगा. उसके लिए आप अपने को एजिटेट करके अपना दिमाग ख़राब कर लें, ये गलत है. बट बैसरन में NIA has done a great job. They have listed out all the people. Evidence is there. You fellow it all over the world. Spread it in the international world. You know, impress all the, the ambassadors who are here. And that's it. Coming finally to the book, final question. What is the one big message you want to give out through this book? Because policing for any democracy, not just India, India is the world's largest democracy, is a very crucial issue. With see, your enormous experience, and I keep repeating it, combined with intelligence, national security, and policing. Again, this book sort of extends beyond a little policing and internal security. Basically, I have divided into 5 parts. Gee. And each part, for example, for, every part, like first I have said how India fights corruption. There are 3 chapters.
First is about the corruption, the ethos in the country, how it started in the Vedic times, how the corruption agencies are functioning and assessment, and why they are not functioning as they should. Okay? Whether it's the ED, whether it's the CBI, what are the problems? What are the issues? And what are the simple things one can do, the low hanging fruits with which we can make the anti corruption drive more effective? Number two, I've talked about criminality in politics. How it is the most important thing in India. Unless we remove criminality from politics and also from the lawmakers, 40% of them are like that, we cannot achieve anything. And third is politics of protection. That how politics of protection, the most serious hits against the political leaders, and how the protection issue is being compromised in India by giving protection to people who are not worthy. The second part is how India fights crime. In that, I have discussed the new criminal laws. But what happened, and I've told you only 10% change, it was not really a change of the colonial era and things like that. Second is the new age crimes, how cyber crimes has taken over. Yeah. What should we do Very about significant. What- Very significant. Which are the states which are going up? Which are the states which are not keeping in with the trend? Third, I've talked about, is the police reformed enough to fight it? All these things, the new age crimes, etc. That gives an idea of what has happened One to the last point, directives. sir. Post Jantar Mantar, I asked you this in particular. To governance, because you're an advisor, you write on governance, you speak on governance. What change will AI bring in, and how good or bad it will be? AI is a real challenge for the Okay. government. Challenge. Yes. You know Oh, why? okay. Because you have to keep up with it. India has to keep up with the AI challenge because there are so many. Mythos se lekar everything. Facial recognition system hai, CCTV se ye hai. There are Oh, so ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप. So, तो चुनौती है. Chinoti. And you know why? Because the criminals are catching as fast. Cybercrime and all these online crimes have become more smart because of the artificial intelligence. They can clone voices. They can talk. For example, they can talk like Abhigyan and fool somebody saying your best friend with your voice. हाँ, It's a सही very, बात है. very dangerous thing. So the government, unless it catches up, it's going to be a problem. Then there are, mythos after mythos coming that it can, the artificial intelligence can detect almost every kind of, lapse, every kind of security architecture which is there. So indeed, and that's why I've said that you have to have a kind of a comprehensive, integrated system to fight and to be on top of these. Every nation is fighting because they are aghast with the kind of changes AI is bringing. A lot of them are negative too. Deepfakes ka problem hai. The crimes which can take place, how you're going to, the laws will have to change. It's a huge issue in itself to discuss. So you say it's a challenge. So thank you so much for talking to us. Many congratulations on the book, and Thank you. it's a must read. Actually, when you talk to a person like Yashovardhan Azad, I've known him for decades now. I was trying constantly to tighten the conversation, but he's a sea full of information and knowledge to impart and talk about. So it was very difficult to hold it on to some issues, but I hope it was very important, especially for the new generation that we call Gen Z, to understand what policing in India means. Thank you so much for watching.